Hello, a very good, happy, and positive evening, everyone. We are here with the day 3 demo class or lecture batch. Vandana, I have already messaged you. वो आपको बता दिया है जितना आपको बताया था. Message, you have seen the message. बस वही आपको करना है. ठीक है? Already informed. Very good evening, Sunena, Sukhpreet, Bhimani, and all those who have joined. Let's start day 3. तो लेक्चर डेमो के लिए, अब लेक्चर डेमो का मतलब ये नहीं है ना कि सारे क्वेश्चंस ਤੁਹਾਨੂੰ उसे लेवल दे, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो तो सबके लिए होगी और एक ऐसा जगह जहां आपको चेक करना है कि किवें क्वेश्चन के आंसर दिते जाएंगे. तो डे 3 हमारे पास है. तो लेट्स स्टार्ट. क्या होगा आज अपने पास, यार देख लिए. डे 3 डेमो है साडे कोलों. ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन होगी, एमसीक्यूज होंगे, ते कुछ बहुत आसान भी होंगे. देखिए फिर लेट्स स्टार्ट. तो आज आपको 4 ऑप्शंस भी मिलेंगी. Which is known as golden age in the history of English literature. Demo 3, day 3. Let's start. Easy questions. Chat private करेंगे. Easy questions. Which is known as golden age in the history of English literature? Easy one. To set a platform, we need to start with the simple basic questions. From there on, added information and a level would be geared up with that. कि तुहानू पता लगे कि स्टार्ट ये नहीं है कि अब लेक्चर का आ गया तो सारे कोई उन्होंने वर्क नहीं पूछना या बहुत टिपिकल होएगा, बहुत मुश्किल, ऐसी कोई चीज नहीं है. आसान क्वेश्चन भी आते हैं और दिस इज वन ऑफ दोज कि गोल्डन एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अगर कोई है तो वो देखे कौन सी है. इट इज सी, Elizabethan age. Elizabethan age, which is considered as the golden age, unparalleled. और आपको पता ही है राइटर क्रिस्टोफर मार्लो, देन वी हैव एडमंड स्पेंसर एंड अनराइवल्ड विलियम शेक्सपियर. बिल्कुल जी, बिल्कुल. वेरी गुड इवनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फेमस comedy was written by William Shakespeare has the subtitle Or What You Will? Or What You Will. Well done. Shabash. Well done, Diksha. Amanjot. Very good. The correct answer, 12th Night. Yes, 12th Night. Very good, correct answer. इसके साथ ये 12th Night और What You Will. Very good answer. इनमें से एक और नोवेल है जिसमें एक कैरेक्टर को उसके 1 pound of flesh दाव पे लगे होते हैं. Is 1 pound of flesh is on stake. कुछ ऐसा है इसके अंदर. Very good. Yes, exactly. और वो था मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटोनियो का. बिल्कुल जी, एंटोनियो. हु इज एट स्टेक. वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश. चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलें. Which famous tragedy explore the themes of ambition and power during the Elizabethan age? आज आपको एलिजाबेथन, जैकोबियन, रोमांटिक, इन एजेस का कुछ टेस्ट मिलेगा, क्योंकि आप एक प्लेटफॉर्म सेट कर रहे हैं कि हर एज की अलग है, कि मुश्किल लेवल पे जाएगा सारा, तासी वो चेक करांगे. The ambition, which famous tragedy explore the themes of ambition, power during the Elizabethan age? Well done. There are certain hints now. How to decode the hint when you appear for lecture paper? It's all about keeping your mind in stable position, because there is automatic hint. This will lead you to your destination. That means correct answer, ambition and power. It's not about only power, ambition and power. And the one who is ambitious is none other than but Macbeth. Very good. Macbeth was ambitious. That's why this is hinted here
So which famous tragedy by Shakespeare explore the themes of ambition and power? He was ambitious, he was looking for power, and this is one of the finest tragedies of विलियम शेक्सपियर. अब एक और इसमें करते हैं, इनमें चारों में से लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है? नाल इंफॉर्मेशन करांगे. लॉन्गेस्ट, वेरी गुड. हेमलेट इज द लॉन्गेस्ट, बिल्कुल जी, लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट ऑफ प्लेज. वेल डन, हेमलेट इज द लॉन्गेस्ट प्ले. चलो अब बात हुई हमारी एम्बिशन एंड पावर की, कि एम्बिशन एंड पावर वाज द थीम ऑफ मैकबेथ. लेट्स decode or let's talk about the themes of Hamlet and Othello. तो हेमलेट का अगर थीम की गल करिए तो की थीम होएगा? yes, Hamlet is well done in action, delayed action जिसको हम कहते हैं, and Othello clearly jealousy. Jealousy, yes. Hamlet, the longest of the Shakespearean plays, theme in action, delayed action. Even when Hamlet knows that his uncle is the murderer of his father, still he delays and looks for the right opportunity. Even when he gets the right opportunity, he doesn't murder him, and in the end gets killed by himself as well. तो रोमियो एंड जूलियट आपको पता है, एक और पार्ट जिसमें लव, हाँ जी, वर्ड्स इन नेम. और ओथेलो जो जेलसी पर बेस्ड है, मूर, ओथेलो, 40 years, डेस्डेमोना जस्ट इनटू द अर्ली 20s, 18, 19, 20 की सिर्फ. तो मैकबेथ इज द राइट आंसर. चलो नाल इंफॉर्मेशन हुई. Which playwright is considered the greatest writer of Elizabethan age? Focusing on ages, which playwright is considered the greatest writer of Elizabethan age? Very good. Yes, Nisha, yes, बिल्कुल. अब देखो, हमको ये पता है कि अगर आप बैकग्राउंड देखिए तो क्रिस्टोफर मार्लो, he came ahead of Shakespeare. He carved the ways for Shakespeare. किया जाता कि मार्लो दी ट्रेजेडी ने हेल्प की सी शेक्सपियर दी ट्रेजेडी ਨੂੰ रास्ता तैयार ਕੀਤਾ ਸੀ. But still unrivaled playwright considered and one of the greatest, that is called God, greatest of all time भी हो गया है जी, ये है ना. God दी ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है abbreviation. तो विलियम शेक्सपियर is the right answer. ठीक है, विलियम शेक्सपियर इज द राइट आंसर. विलियम शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये है. क्रिस्टोफर मार्लो डिड राइट ट्रेजेडी. ही वाज द वन हु पेव्ड वे फॉर विलियम शेक्सपियर, मतलब उनसे से रास्ता तैयार किया सी. ट्रेजेडी किधरों ना किधरों इंस्पायर्ड है ने, लेकिन स्टिल ग्रेटेस्ट ऑफ द एज, जिसके नाम से ये एज जानी जाती है, दैट इज विलियम शेक्सपियर. देखिए जी, थैंक यू वेरी मच. और इसमें अब हम थॉमस किड की कल बात करी थी. थॉमस किड बारे की इंफॉर्मेशन है, जरा दसो. थॉमस किड ने क्या करा था? यस, रिवेंज ट्रेजेडी. ही वाज द वन हु इनिशिएटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी. राइट, वेल डन, वेरी गुड. स्पेनिश ट्रेजेडी थी वो, जिसका नाम था, एंड देन टर्म्ड आउट टू बी रिवेंज ट्रेजेडी एंड फॉलोड ऑन मैनी. बिल्कुल जी पूजा, शाबाश, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which genre of literature gained popularity during the Elizabethan age? Which genre of literature gained popularity during the Elizabethan age? We have romance, we have poetry, drama, prose. The one who made it a golden age with his brilliance of work and still is considered the unrivaled dramatist till date, he is none other than विलियम शेक्सपियर. तो विलियम शेक्सपियर की गल आंदे ही सानू पता है कि फोकस किते होएगा? ड्रामा ते. तो वेरी गुड जी, आंसर इज सी, ड्रामा. ड्रामा, गोल्डन एज ऑफ ड्रामा, एंड रीजन बीइंग विलियम शेक्सपियर. तो गेन्ड पॉपुलैरिटी. कई बार क्वेश्चन है जब एक के, लेकिन क्वेश्चन का बाद में पता चलता है क्वेश्चन तो बहुत आसान है.
ਲੈਵਲ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚ ਜਨਰਾ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਗੇਨ पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज इज ड्रामा। हाँ जी, एक ही बात होती है रूही, सेम थिंग। प्लेस जो है वो ड्रामा का ही रूप है। Who is considered the first English Renaissance poet during the Elizabethan age? अब आपका टेस्ट होगा, ये आपका रियल टेस्ट होगा। अब आपको बताया था लेवल को हम बढ़ाएंगे। So who is considered the first English Renaissance poet during the Elizabethan age? निशा, तुम क्वेश्चन मार्क डाल देती हो, मेरे से कंफर्म करते हो कि आंसर करते हो? वेरी गुड इवनिंग। यू ऑल आंसरिंग। मेरे को ये बताओ, फर्स्ट इंग्लिश रेनेसां जो बात हम कर रहे हैं, जरा इसको लेके चलें आगे, ठीक है? क्या शेक्सपियर पोइट नहीं था? टेल मी। वेल डन रूही। कि शेक्सपियर पोइट थी कि नहीं, मैंने दसो पहले। अगर शेक्सपियर पोइट था तो फिर एडमंड स्पेंसर कैसे? तो एडमंड स्पेंसर कैसे? शेक्सपियर वाज नॉट ओनली अ ड्रामेटिस्ट। अगर हम ये कहें फर्स्ट इंग्लिश रेनेसां पोइट की अगर बात होगी तो भी याद रखना, फर्स्ट इंग्लिश रेनेसां पोइट ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज इज अगेन विलियम शेक्सपियर। ठीक है, फिर भी जो आंसर आएगा वो शेक्सपियर है। अमनजोत नहीं, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश रेनेसां। देखो निशा, यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो ये क्लासेस लगती हैं। आप देखो, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ क्वेश्चन हो ना जान के कंफ्यूज करनगे ਤੁਹਾਨੂੰ, ईजी है, लेकिन हम डीकोड कैसे करेंगे ये याद रखना है, ध्यान रखेंगे ਅਸੀਂ। तो ठीक है, शेक्सपियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन नाउ। तो आंसर इज विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट देखिए, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर? चलो अब ये देखते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म, क्योंकि आप कुछ एजेस की गल करनी है आज आपको, रोमांटिक एज, जैकोबियन एज, कुछ कुछ इन्हों के क्वेश्चंस गल करके। वेल डन जी, आंसर्स आपके ठीक जा रहे हैं। मेरे को ये बताओ, कंफ्यूजन सिर्फ इकट्ठे थे इधर ही होनी चाहिए थी, और ज्यादा होएगी नहीं। एक ये भी आंसर बीच में आता है, ये वाला और ये वाला, अब इनमें से कैसे सॉर्ट आउट करें? लेकिन क्योंकि जो रोमांटिसिज्म है, जो रोमांटिक पीरियड है, दैट सीज द लिरिकल बैलेड्स, द फर्स्ट वन, तो साडा जिहड़ा आंसर है वो जिहड़ा है वो हमेशा वर्ड्सवर्थ ही रहेगा। ठीक है, वर्ड्सवर्थ रहेगा। लेकिन विलियम ब्लेक के लिए क्या टाइटल है? क्योंकि आया पहले ही है, आया पहले ही है। हाँ, एंड ही इज नोन एज ए प्री रोमांटिक। प्री रोमांटिक पोइट जो है वो है विलियम ब्लेक। लेकिन वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। एक क्वेश्चन तो होर अगे बड़ा इंटरेस्टिंग पूछांगा, आने दो, विल हैव दैट। हाँ जी बिल्कुल हिमानी, यस। नेक्स्ट आसान सा पूछते हैं, हु रोट द गॉथिक नॉवल फ्रैंकेनस्टाइन? कदे कदे बहुत मैं तुहानू ये पिक्चर से ये दिखा रहे हैं कि लेक्चर लेवल का मतलब ये नहीं होता, क्योंकि ये वाले सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी लेक्चर के पेपर में आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने लगता है फ्रैंकेनस्टाइन तक किसी ने पढ़िया नहीं होता, सुनिया नहीं होता। तो वी नो लेवल तो 20 30 40 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सीधे सीधे वर्क पूछे जाएंगे और आसान रहेंगे। एंड फ्रैंकेनस्टाइन वी नो। एंड पर एक होर चीज हैगी है, की हैगा सी इहदे च? हाँ, कुछ आप आंसर कर रहे हो, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। 23 चैप्टर्स, मॉडर्न प्रोमेथियस, प्रीफेस बाय विलियम पर्सिबिस शेले, वेल डन, वेल डन, सारा कुछ, वेरी गुड इवनिंग। पल भी लेट हो गई। 1818 बिल्कुल। और कहते हैं पब्लिशिंग ईयर याद नहीं होते, ये भूतिया जड़े होंगे ने ना सारे, हमने उसको कर रखा है कि वो सारे ऐसे ही होंगे। 1818 है ना? तो मैरी शेली इज द राइट आंसर। 1818 प्रोमेथियस अनबाउंड। हाँ जी, वेल डन। और जो फ्रैंकेनस्टाइन था, इट वाज नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, नॉट द मॉन्स्टर। देखो एक क्वेश्चन के बाद आप इसके 8 क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो,
Can we have another option for that? We are not leaving any room for the examiner to set a question. He may find himself confused because we people, yes, रोही बिल्कुल सही है, तो आंसर साडा आ गया जी। तो ये पता, क्योंकि मैंने तो एक छोटा सा, मैंने ये देखना था कि एक लिखने के बाद आप इसके कितने आंसर देते हो, एंड ऑल करेक्ट। वेल डन सुरभि, बिल्कुल जी, 4 लेटर शुरू थे लिखे थे वॉल्टन ने। हाँ जी, नेक्स्ट वन नाउ। Which of the following is not a characteristic of Roman romantic literature? ध्यान से पढ़ना। ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਇਹ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ मतलब पढ़े क्यों नहीं, हमें पता है, वी नो द आंसर्स। वेरी गुड, शाबाश, यस, सबने ठीक करा, वेरी गुड। गलती किसी को हो रही, एक दो ने थोड़ा जा कोशिश की है, ठीक है, तो वहां बाकियों का ऑलमोस्ट यू हैव बीन वंडरफुल। सरबजीत ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਸਰਬਜੀਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। यस रूही, वेल डन, वेल एक्सप्लेन्ड। मैं सारे का मीनिंग दसांगा नवनीत, सुनो। देखो अब हम चेक करते हैं कि क्या हुआ था इस एज में। हम बात कर रहे हैं विच इज नॉट, पहले तो आप पढ़ लिया जाए क्योंकि पेपर से बच्चे नोट पढ़ना भूल जाते हैं, मैंने इसको वैसे तो यहाँ बोल्ड कर दिया इतना। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, क्या नहीं है। देखो पहली ऑप्शन लव फॉर नेचर, ये तो है ही है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, सही, ठीक है, पहले ना पाई कर लेना, सही आंसर टिक सामने कर लेंगे। फिर फोकस ऑन इमोशन एंड इंडिविजुअलिज्म, देखो सारी पोइट्री ही आपको पता है क्या है, सब रोमांटिक की पोइट्री सब्जेक्टिव है क्या ऑब्जेक्टिव है, मैं भूल गया, जरा मैं दसिया जी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, रोमांटिक पोइट्री सब्जेक्टिव है क्या ऑब्जेक्टिव है। वेल डन, all correct answers, yes, well done, you know it's all subjective, ठीक है ना, सारी ਜਿਹੜੀ पोइट्री ਉਹਨਾਂ ਦੀ सब्जेक्टिव है, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ पता है, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव है तो इट मींस इट्स इंडिविजुअलिज्म को तो अटैक मतलब हाईलाइट किया जाएगा, तो इमोशंस तो उनके आएंगे बाहर, तो ऑप्शंस क्लियर। सब्जेक्टिव पोइट्री है, सब्जेक्टिव पोइट्री डील्स विद इंडिविजुअलिज्म, ऑप्शन आ गई, तो ये तो सही है। फिर आ गई यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड सिंबलिज्म, केड़ा बंदा सी जेड़ा इमेजिनेशन की गल प्राइमरी और सेकेंडरी की बात कर रहा है। इमेजिनेशन वर्ड्सवर्थ ने भी यूज करी है, कीट्स ने भी यूज करी है, पर्सी बिशेस शेले ने भी करी है, लेकिन एक होर पोइट ते राइटर जिन्होंने असीं सब तो उत्ते लैने, वेरी गुड, इट्स एसटी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो तीनों ऑप्शन तो हो गई, तो क्या बचा, रैशनैलिटी नहीं है। रैशनैलिटी क्या होता है, लॉजिक वाली पोइट्री नहीं लिखी जाती सी, तो लॉजिक वाली पोइट्री कहाँ लिखी जाती थी, कौन सी एज में लिखी जाती थी, बताओ जरा। वेल डन हिमानी एंड सुरभि, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। थोड़ा सा पीछे जाओ सोनम जी, आगे चले गए ज्यादा आप, हमें पीछे जाना है, आगे नहीं जाना। नहीं रूही, यहां से आपको थोड़ा शालिनी पीछे जाना है। हम रीजन की बात करते हैं, इंटेलेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो जो हम बात करते हैं ना रैशनैलिटी, जो रैशनैलिटी की बात हो रही है एक्चुअली, वो रैशनैलिटी आपको ऑगस्टन एज में मिलती है, ऑगस्टन एज, ठीक है। ऑगस्टन एज इज नोन फॉर रैशनैलिटी, नॉट विक्टोरियन, आगे मत जाइए। ऑगस्टन एज नॉन फॉर, मैंने आपको बोला था कई बार, आपको बताया 95% 7% बच्चों दे ठीक सी। ऑगस्टन एज, रिमाइंड इट, when we talk about the poetry of two different poets, Wordsworth was the one, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ याद होएगा ਤੁਹਾਨੂੰ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं टीएस इलियट की दी हुई टर्म यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसमें वो कहता है कि कीट्स और वर्ड्सवर्थ तो पोएट ही नहीं, क्योंकि दे आर सब्जेक्टिव पोएट्स, सब्जेक्टिव राइटिंग है पोएट्री ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਕਡ ਵਿਦ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੈਕਟ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ऑगस्टन पोइट्री डायरेक्ट टू माइंड, रैशनैलिटी। पॉप की पोइट्री
जो है इंटेलेक्चुअल पोइट्री है, रैशनल पोइट्री है। इमोशनल पोइट्री वर्ड्सवर्थ और कीट्स की है, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, क्वेश्चन ਨੂੰ आसान भाषा ਵਿੱਚ भी है, लेकिन कई बार आ जाता है इंडिविजुअलिज्म की है, की चीज है, तो आपको आसान भाषा में भी पता है इंडिविजुअलिज्म क्या होता है। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ इंडिविजुअलिज्म एक्चुअली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इंडिविजुअलिज्म इट्स सब्जेक्टिव पोइट्री, ये सब्जेक्टिव पोइट्री होती है, और वही करते थे कीट्स, वर्ड्सवर्थ, दे वर ऑल सब्जेक्टिव पोइट्स, सब्जेक्टिव राइटिंग सी होना थी, तो आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, लेवल वो जरूर रह के आंदा, लेकिन क्वेश्चन को डिकोड करना साडे लिए मुश्किल नहीं सी। मैंने आपको बोला था आज हम ऑप्शंस देखेंगे, तो ऑप्शन बी एम्फसिस ऑन रैशनैलिटी। ओके, नेक्स्ट वन नाउ, व्हिच रोमांटिक पोएट रोट द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। अब इससे आगे चलेंगे हम, ये आसान सा क्वेश्चन, लेकिन इसके बीच में क्या छुपा है जरा वो देखेंगे हम। इट वुड बी वेरी इजी फॉर एवरीवन। कोट्स आती है हमारी बहुत सारी, वाटर वाटर एवरीवेयर, यस, फर्स्ट फॉर्म एंड लिरिकल बैलेड्स, 7 पार्ट्स हैं, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है, यस, अ पेंटेड शिप ऑन अ पेंटेड ओशन, albatross bird killed by the mariner, supernatural element, yes, and willing suspension of disbelief। well done तविंदा, 3 वेडिंग गेस्ट हैं उसके आगे, पूरी की पूरी आपने यहां लिख दिया, यस, एग्जैक्टली, वेरी वेरी गुड, यस, 200 पैसेंजर्स, देखो पैसेंजर्स तक भी पहुंच गए हम, वेल डन, वेरी गुड जी, शाबाश। तो आंसर मैंने बस यही आपको आंसर अब इसका पता है, आप चेक ही करना चाहते थे कि आंसर इसका हमें मिल गया। सैमुअल टेलर कॉलरिज, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो टर्म थी इसके अंदर अप्लाई करी गई है। ठीक है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ पढ़ांगे ਜਿਹਨੂੰ नहीं पता ਉਹਨੂੰ समझावांगे भी की ਹੁੰਦਾ है। तो कहने का मतलब ये है कि आसान क्वेश्चंस भी होते हैं। हाँ जी सोनिया, वेल डन, थीम सिम एंड रिडम्पशन, बिल्कुल सही, वेल डन, बिल्कुल रूही, वी एक्नॉलेज इट, एंड ये चीजें होंगी whenever we have a shortened class, रूही, we continue with some questions, and today's was रीजन कि ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, you find maybe sometime even in master cadre paper we have 5 to 10 15 questions, they just try to give you a bit of confusion, they just put you at 6s and 7s, but once you read it carefully with a calm mind, I think easy to decode, and you are doing with that bit कि एक क्वेश्चन ਦੇ 4 आंसर ਤੁਸੀਂ ऑलरेडी दे रहे हो, well done। Which romantic writer is known as anti-romantic and anti-gothic? है तो रोमांटिक, लेकिन कभी इसे रोमांटिक राइटर माना नहीं गया, और एंटी गॉथिक भी कह दिया अब इसको। नहीं रूही, कंफ्यूज कैसे हो गए? कुछ बच्चों ने कंफ्यूजन ज्यादा, उन्हें पहले क्लास लाई नहीं हुई है, पढ़ा नहीं होना, अदरवाइज कंफ्यूज होने वाली गल ही नहीं है। मैंने स्टेट वे इस चीज को उस क्लास में पता नहीं कितनी बार बताया था जिन्होंने क्लास लाई हुई है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट वे क्लिक हो जाता है, ले ये देखा, तो आंसर इज जेन ऑस्टन, जेन ऑस्टन इज द राइट आंसर। जेन ऑस्टन, आपको भूलना नहीं है कि सही आंसर हमारा जेन ऑस्टन है। जेन ऑस्टन anti-romantic, she made fun of gothic elements, and even when you find love in her novels, domestic novels गिने जाते ने, still she is called anti-romantic, क्योंकि जो imagination है ना वहां की, वो ऐसा कुछ नहीं है। yes, these are tea table novels, domestic novels जिसको कहते हैं, या tea table novels। queen of irony, yes, हाँ, प्राइड एंड प्रेजुडिस फिर आपको याद ही होगा, डार्सी एंड एलिजाबेथ, वेरी वेरी गुड। आप तो जिस तरह से इंफॉर्मेशन दे रहे हो, मैंने लगता है पेपर बनाने वाला सोचेगा भी क्वेश्चन चकड़े कितने ने सी, है ना, यू आर ऑल ऑन बुल्सआई। चलो नेक्स्ट देखे क्या है। हाउ डिड द जैकोबियन इरा एंड विद? अब ये बताओ मुझे, ध्यान से करना, हाउ डिड द जैकोबियन इरा एंड विद? Was it a severe economic depression?
Was it complicated by a serious outbreak of bubonic plague? Was it First World War or A and B both? वेरी गुड। यहां पर देखो, अब यही होता है जब हम वहां देखते हैं कि क्वेश्चन आज एंड थोड़ी वैरायटी है, जिਵੇਂ जिਵੇਂ ਅਸੀਂ गेयर चेंज करांगे लेवल चेंज होगा, आपको लगेगा कि इसका सामना कैसे करना है। सो यही चीज है जो आपको देखनी है। एक्चुअली जैकोबियन इरा एंड होंदा क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੀ जो पॉलिसी सी ना जेम्स परवार दिया, ठीक है, वो क्या था, पहला तो सीवियर इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, यस, फिर एक कॉम्प्लिकेशन भी हो गई, सीरियस आउटब्रेक हो गया बाय बुबोनिक प्लेग, प्लेग भी फैल गया। तो दोनों ऑप्शन सी हैं। अब इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जगह अगर इंग्लिश वॉर सिविल वॉर होता तो आंसर तीसरा भी हो जाता, फिर ऑल दीज हो जाना था, ठीक है। तब इंग्लिश सिविल ब्रेक भी हुई थी, सिविल वॉर भी हो रही थी, इंग्लिश सिविल वॉर वाज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस, ये भी चल रहा था, तो ये कारण से, लेकिन उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं आती, ठीक है, वर्ल्ड वॉर नहीं आती। तो इसलिए ये तीनों कारण बनते हैं कि डिप्रेशन भी आया, नहीं नहीं नहीं, नॉट इनटू द 1931, इट्स सीवियर इकोनॉमिक डिप्रेशन, जैकोबियन एज की हम बात कर रहे हैं, 17th सेंचुरी, ठीक है। तो वो भी हो गया, फिर सीरियस आउटब्रेक ऑफ बबूनिक वो भी हो गया। तो ये सारे कारण बने उसके एंड के, जो जैकोबियन इरा एंड होया वो ऐसा कर रहे हैं। सो डी आंसर ए एंड बी। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तो आप देख सकते हो, हाउ डिड द जैकोबियन इरा एंड विद, एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, यस 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 यस, the Jacobean era ended with a severe economic depression in 1620 to 26, then complicated by a serious outbreak of the bubonic plague in 1625 in London। तो ये दो चीजें लगातार जड़ी हुई हैं, becomes the reason कि जैकोबियन इंज का अंत हो गया। Which of the following is not a characteristic of Jacobean drama? अब जैकोबियन ड्रामा की क्या नहीं थी फीचर, पहचान लोगे आसानी से आप, ढूंढो। ऑप्शन ए स्प्लेंडिड एंड ग्रैंडियोस लैंग्वेज, मींस शोई, ग्रैंडियोस का मतलब होता है स्टाइलिश स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर्स, रोमांस एंड लव थीम्स, यूज ऑफ ट्रेजिक एंड वायलेंट थीम्स। अब आपको इसको पहचानना कितना आसान है ना, वैसे भी देखा जाए तीन एक ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, एक ही इसमें ऑड मैन आउट हो रहा है, एक ही ऑड मैन आउट हो रहा है। ग्रैंडियोस लैंग्वेज, जब कॉम्प्लेक्स और हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल डायमेंशनल कैरेक्टर हैं, लैंग्वेज स्टैंडर्ड दी है, और सबसे ज्यादा जो यूज होता है यूज ऑफ ट्रेजेडी एंड वायलेंट। लेकिन आपको जैकोबियन एज में रोमांस एंड लव थीम्स नहीं मिलते थे। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सुरभि, यस, सुरभि मिला ही नहीं ना, रोमांस एंड लव थीम्स हमें मिले ही नहीं ना उसमें। तो सी, बाकी तीनों है, स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज स्प्लेंडेड हो गई, ट्रेजेडी और वायलेंट थीम्स आ रहे थे, मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर्स शुरू हो गए थे, एंड देन रोमांस एंड लव थीम्स। सोनिया आप ऊपर पढ़ो, मैंने ड्रामा के बारे में पूछा है, पोइट्री का नहीं पूछा है, ठीक है ना। डन की लव पोइट्री थी, लेकिन पोइट्री नहीं, हम ड्रामा की बात कर रहे हैं। पोइट्री में तो आपको लव मिलेगा, उसकी भी वैसे लव, सेंसुअल लव अलग है, इरोटिक लव अलग है, रिलीजियस अलग है, वो भी अलग अलग सब। रूही, यस, जैकोबियन एज को डार्क माना जाता है थोड़ा सा, मतलब राइटिंग में। देखो जो रोमांटिक एज है ना, रिवाइवल है ना दबिंदा, दैट इज टर्म्ड एज डिफरेंट। जो रोमांटिक वर्ड को हम यूज करते हैं, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा आगे, आगे आने वाला है, आगे तो हम दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखिए अब इसका आंसर हमारे पास जो आ गया है, दैट इज रोमांटिक, रोमांस एंड लव थीम, वो नहीं था। चलो नेक्स्ट देखिए, तो क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रामा की, जरा देख लीजिए आप। जैकोब, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन जैकोबियन ड्रामा इज ट्रेजेडी, ट्रेजेडी आती है सबसे पहले तो, ठीक है, ट्रेजेडी आई, ठीक है, ट्रेजेडी। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर डार्क थीम्स, अगेन थीम,
Unlike the Elizabethan era, Jacobean drama is typically more cynical, multidimensional and darker. इतना डार्कर एलिजाबेथन एज में नहीं था जितना कि जैकोबियन में था। तो ये सारी एडेड इंफॉर्मेशन चाहिए ने थोड़े को। So common characteristics found in Jacobean drama is tragedy. Other characteristics are dark themes. Unlike the Elizabethan era, Jacobean drama is typically more cynical and darker. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उनकी अपने को। Who popularized the use of satire in Jacobean drama? This is like an ABC. सनकी, बबली सनकी होता cynical दा मतलब। ये आसानी से आप पहचान लोगे। Everybody would answer correctly. I know it. Who popularized the use of satire in Jacobean drama? हाँ जी, सारे ना ठीक है लाए। शायद एक ही कोई टाइप करने गलती होगी, मे बी क्वेश्चन पढ़ा नहीं तो अलग बात है, जब टाइप करने गलती होगी, क्योंकि इसका आंसर सिर्फ एक ही है हमारे पास एंड एवरीबॉडी नोज, ये गलत होता ही नहीं है किसी का। तो आंसर इज बेन जॉनसन। जब सटायर की बात आ गई तो हमें पता है नन अदर देन द बेन जॉनसन इज द राइट आंसर। यस, बिल्कुल सही। इंफॉर्मेशन की है साढ़े को लेने बारे जरा देखिए। So Ben Jonson, he popularized the comedy of humors. जो तो comedy of humors की गल आती है, straight away जो नाम हमारे दिमाग में आता है वो बेन जॉनसन है। He is best known for the satirical plays, व्यंग्यात्मक। और उसके कौन कौन से थे? Every Man in His Humor, 1598, Volpone or the Fox, The Alchemist, The Bartholomew Fair। ठीक है, ये सारे आपके सामने। ठीक है, ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का नाम बेन जॉनसन के साथ जुड़ा हुआ। Which of the following is not a characteristic of Jacobean prose? Mind it, now I am writing it prose. क्या नहीं था उनके पास? अब देखना पड़ेगा आप कैसे इसको करते हो डिकोड। Which of the following is not a characteristic of Jacobean prose? Well done. सब कर रहे हैं अच्छी तरह से। सोनम थोड़ा सा पीछे आगे चले गए ज्यादा। हाँ, आ रहे हैं करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, ज्यादा करके आंसर ठीक ही नहीं, सिर्फ एक दो जने कंफ्यूजन है, वो दूर कर देंगे। अरे जब हम प्रोज की बात कर रहे हैं ना, तो उनके जैकोबियन के पहले आप क्या थोड़ा डार्क साइड रहा लिटरेचर है ना, तो चाहे वो प्रोज की भी बात होती थी तो वर्ड प्ले तो उनके पास दे आर हैविंग वंडरफुल राइटर्स। फिर यूज ऑफ इंट्रिकेट सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले ही कह दिया, वो चाहे ड्रामा की बात हो रही है, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਹੀ नहीं पाए। दे वर शॉर्ट ऑफ क्लैरिटी एंड सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी तो उनके वर्क में आई नहीं कभी। डेंस मेटाफोरिक लैंग्वेज, लैंग्वेज को बड़ा ही गंभीरता से सिंबॉलिक मतलब टिपिकल लैंग्वेज यूज करना वो कर रहे थे, वो कर रहे थे, लेकिन क्लैरिटी नहीं सी। हाँ जी बिल्कुल। तो जो डी आंसर है जैकोबियन एज में कभी भी उनके पास, देखो जितने तुसी एलोबरेट वर्ड प्ले यूज, देखो अब इसको कैसे आप समझोगे, जितने जितने तुम पता है ना, जितने ज्यादा एलोबरेट लैंग्वेज यूज होनी शुरू हो जाएगी ना, वहां पर क्या होता है वर्ड प्ले, जब लैंग्वेज ज्यादा हो जाती है ना तो वहां पर सिंपलिसिटी की कमी आ जाती है। ठीक है, समझे? वर्ड प्ले एलोबरेट है, लैंग्वेज बड़ी स्टैंडर्ड की है, कॉम्प्लेक्स हो गया तो चीजें क्या मिस हो जाएंगी, फिर क्लैरिटी और सिंपलिसिटी थोड़ा मिलेगी आपको। ठीक है, दैट्स व्हाई क्लैरिटी एंड सिंपलिसिटी इज मिसिंग। चलो नेक्स्ट, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, टर्म कॉइंड बाय, किसने करा इसको कॉइन? फॉक्स है अकेला? सोनम? टर्म कॉइंड बाय, टर्म कॉइंड बाय, माइंड इट, आई एम नॉट आस्किंग यू हु वाज द वन टू यूज इट फर्स्ट। अलेक्जेंडर बेन का नाम आपको आता है, लेकिन मैंने आपको बताया था अलेक्जेंडर बेन का नाम नहीं लेना, क्रेडिट नहीं मिलता उन्होंने। अलेक्जेंडर बेन आया है हिस्ट्री तो लिटरेचर पढ़ने मिलेगा, लेकिन आपने अलेक्जेंडर बेन का नाम नहीं लेना। हमारे लिए जो आंसर है वो है
जिसने बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन 1890, वो है विलियम जेम्स। यस, तो आंसर इज विलियम जेम्स। टर्म कॉइन्ड बाय विलियम जेम्स इन हिज बुक, ठीक है, विलियम। और उसके बाद हमारे पास है हु वाज द फर्स्ट टू यूज इन हिज नॉवेल्स, सबसे पहले यूज किसने करा था? वेल डन। फर्स्ट यूज बाय, यस, नॉवेल्स में जो इस टाइम पे सबसे ज्यादा यूज हो रहा था वो जेम्स जॉयस था इसको यूज करने वाला। हाँ, पॉपुलर जेम्स जॉयस और आपको वर्जीनिया विल्स दोनों का नाम आएगा, लेकिन यूलिसिस द मेंशन सब तो पहले आता है। तो जेम्स जॉयस वाज द फर्स्ट वन टू यूज इट। इसके बारे में कुछ और है हमारे पास। द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, टर्म ध्यान रखना, टर्म को पहले किसने यूज करा था? वो साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स था, इन हिज बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन 1890। तो 1890 में जो उसकी बुक आई उसमें इसने यूज करा। तो विलियम जेम्स, अलेक्जेंडर बेन का मैं आपको पहले बोल रहा हूं, नाम सुनने को मिलता है, लेकिन ही इज नेवर क्रेडिटेड विद दिस, इट्स ओनली विलियम जेम्स, अमेरिकन, जिसने अपनी, वो साइकोलॉजिस्ट था और अपनी बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में इसने यूज करा। इसको टर्म को एक और नाम से भी जानते हैं, वो क्या नाम था भूल गया मैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में एक और नाम तो जाना जाता है। वेल डन दीक्षा, मैं समझ गया आपकी शॉर्ट फॉर्म। मैं तो दीक्षा इसको ऐसे पढ़ूंगा, आई एम सिलेक्टेड फॉर लेक्चर, शुड आई? हाँ, सही पढ़ा ना? हाँ, तो इंटीरियर मोनोलॉग, यस, इंटीरियर मोनोलॉग इज द अदर नेम ऑफ इट। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਚ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਚ ਚ, ਫੈਬ ਚ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਢ ਲਓ, वी विल हैव द टॉपर्स, गारंटेड है कि टॉपर्स अपन को मिल जाएगा। हाँ रूही, यस। अब क्लास संडे को एक ना, संडे को एक जो क्लास है ना, वो शायद मैं बाहर जा रहा हूँ, उसको हम प्लान करेंगे पहले, जब बाद में जैसे भी आपको, क्योंकि क्लास अपनी वीएस डॉपोल की मैं संडे कह रहा था, तो आपको मैं स्केड्यूल क्लास में डालूंगी। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। द रोमांटिक पीरियड की बात करते हैं, कब शुरू हुआ है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, फिर थोड़े के क्वेश्चन भी पूछांगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैं। लिरिकल बैलेड फर्स्ट पब्लिश इन 79, इट्स कंसिडर्ड द डैश। तो क्या है, इससे शुरू होता है 1798 को, इट इज कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक पीरियड, बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश मूवमेंट, इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट इन लिटरेचर। रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। ते कौन कौन से वो दो राइटर थे, तुसी दसी जाओ, मैं तुहानू स्लाइड दिखाई चला, तुसी जो बोलोगे मैं तुहाडे सामने टाइप कर देंगे। कौन कौन से दो राइटर थे? वेरी गुड, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, ठीक है। तो कितनी पोम्स थी इसके अंदर? वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ एंड एसटी कॉलरिज, कितनी पोम थी? 23। लिरिकल बैलेट्स कब आया था? वो 1798, नीचे लिखा ही हुआ है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन किस किस का था? यहां पर 19 + 4 रिस्पेक्टिवली होगा, क्योंकि मैंने वर्ड्सवर्थ का नाम पहले लिखा है। और फर्स्ट थी ड्राइंग ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जिससे फेमस बहुत हुआ। लास्ट थी ट्रिंटन एबे। सारा कुछ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ठीक है ना। those who are the new students, they will have 8 to 10 questions in a just single work। तो देखिए अब आपको क्या क्या आगे मिलता है। A collection of poems by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge। ये हमने पहले बात कर ली है, क्योंकि अपन लिख लिया पहले। टोटल साढ़े को लगे 23। वर्ड्सवर्थ ने 19 लिखी थी, कॉलरिज ने 4 लिखी थी, टोटल 23 है। और क्या है इसके बारे में? लिरिकल बैलेड्स इन द फर्स्ट एडिशन 1798, देयर वर 19 पोम्स रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, 4 पोम्स बाय एसटी कॉलरिज। जो आपने लिखा सारी इंफॉर्मेशन है आ गई हो। फर्स्ट पोम द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, एक्चुअली स्पेलिंग ये वाले होते हैं, लेकिन हम दूसरे भी लिख सकते हैं, कॉलरिज की लिखी हुई है। एंड देन कम द लास्ट वन, लाइन्स रिटन इन अबव, लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव ट्रिंटन एबे, the last one,
These are the two poems, first and the last of the 23. Then come the Lyrical Ballad, second edition आया, वो 1800 में पब्लिश हुआ। हाँ जी, डाउट रूही बोलो, यू हैव डाउट पूछिए। हाँ जी, तो फिर सेकंड एडिशन आया, पब्लिश इन 1800। फिर इसमें क्या हुआ, वर्ड्सवर्थ इंक्लूडेड एडिशनल पोम्स एंड ए प्रीफेस, तो 1800 में प्रीफेस आ गया। सेकंड एडिशन में प्रीफेस लिखा गया, जनरल इंफॉर्मेशन आगे चलता जाऊंगा मैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन आगे हम सारी मिल ही जानी। फिर आया अनदर एडिशन पब्लिश इन 1802 एंड वर्ड्सवर्थ एडेड एन अपेंडिक्स टाइटल्ड पोएटिक डिक्शन। पोएटिक डिक्शन आ गया जी हमारे पास। लास्ट फोर नहीं रूही, नॉट लास्ट फोर, टोटल फोर, नॉट लास्ट फोर। जो टोटल 23 फॉर्म्स थी उसके अंदर फोर एंशिएंट, फोर हैं कोलरिज की, 19 हैं वर्ड्सवर्थ की, लेकिन फर्स्ट फॉर्म राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है, और उस कलेक्शन में सबसे फेमस होने वाली पोम भी राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर थी। वहीं से ही जो सुपर नेचुरल का टाइटल है वो एस टी कोलरिज को टर्म करा गया, एसोसिएट करा गया। From there he became very successful, and out of those 23 poems this was one of the finest, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ फेमस हुई। ठीक है, इसलिए हाँ जी। फिर आया जी इसका एक और फोर्थ एडिशन इन 1805, तो फोर्थ एडिशन आ गया 1805 में। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇਖੀਏ, concept of romanticism। आपको पता है, मैंने ये दसो कि वर्ड्सवर्थ, बायरन, शैले, कीट्स, कोलरिज, इनको पता था कि ये रोमांटिक पोइट्स हैं? टेल मी, डू दे नो कि दे वर द वन, कि वी आर रोमांटिक? रोमांटिक वर्ड उन्होंने पता सी, रोमांटिसिज्म का पता था, लेकिन दे बिलोंग टू रोमांटिक पीरियड, दे डिडंट नो, उनको नहीं पता था। तो किसने दसिया फिर, किसने बताया उनको कि ये रोमांटिक पीरियड है? किन्ने उन्होंने दसिया, पता लग गया? उनको तो पता ही नहीं, उनकी तो वो तो स्वर्ग सिधार चुके थे। तो नहीं दीक्षा, आपको बताता हूं कहां से ये शुरू हुआ। सैमुअल जॉनसन नहीं, टीएस इलेट भी नहीं है, रूसो भी नहीं है, नहीं, आपको बताता हूं, क्योंकि यही हम लेक्चर लेवल के आगे लेके चलते हैं कि कैसे ये चीजें पता चली। ठीक है, पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इन्ना नहीं लेके जाएंगे, लेकिन वी शुड नो कि ये अगर लेक्चर लेवल पे आ रहा है तो ये क्वेश्चन कहेंगे रोमांटिक एज कैसे पता चला। तो लेट्स सी कहां से पता चला उन्हें। तो ये है जी कंसेप्ट में आपके सामने जो लेके आया, द कंसेप्ट ऑफ रोमांटिसिज्म, द वाइड स्प्रेड application of the word romantic to these writers was probably owing to Alois Brendel। ये वाला बंदा था जिसने पहली बार इनको करा था। अगर तो उन्हें थोड़ी और डिटेल देना, the concept of romanticism, the widespread application of the word romantic, although romantic poets ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ word ਪਤਾ ਸੀ, but to these writers was probably owing to Alois Brendel। Alois Brendel ने क्या करा था, कैसे आया सामने जी? तो सुन देखो, Alois Brendel एक बुक आई थी, Coleridge and Die Romantischule in England, ये ट्रांसलेशन थी। इसका मतलब है Coleridge and the Romantic School in England translated into English in 1887। इसको ट्रांसलेट करा गया। फिर उस तो बाद एक और वॉल्टर पेटर ने ऐसे लिखा 1889 में रोमांटिसिज्म, और वहां से ये टर्म इसको जो रोमांटिक पोइट देना शुरू हो गया था। फिर इन्होंने उन्होंने मन्या कि उस एज रू रोमांटिक एज किया जाने लग गया। तो ये था इसका दोनों का, एक वॉल्टर पेटर कैसे और एलोइस ब्रेंडल। ठीक है, समझ लिया जाए, ब्रेंडी पी के उन्हें रोमांटिक की गल, रोमांस की गल कर ली, आसानी से याद हो जाएगा। ब्रेंडल है, ब्रेंडी से जुड़ रहा है, ठीक है ना। अब पता डी कोड करना, अब पता उन्होंने कोड करना है, आगे से भूलेगा नहीं। बस ब्रेंडल ने ब्रेंडी पी के कर दिया। ਅਮਨਜੋਤ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ। ਪਰ यहाँ पर ना एक ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ एटलीस्ट
साइड कोई ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ जनरल एक इंफॉर्मेशन है जो ਤੁਹਾਨੂੰ शेयर की, आपने सुनी। और ये क्वेश्चन ना कभी मिक्स नहीं होते। दीज क्वेश्चन जब आपको 4 ऑप्शन आएंगी ना स्पॉट ऑन, तो सीधा आंसर कर लोगे। अलोइस ब्रेंडल ने, और फिर वॉल्टर पेटर का ऐसे आया था, वॉल्टर पेटर पीता थी, तो वहां से ये काम शुरू हो गया था। ठीक है, याद रह जाएगा। एंड इट बी नोटेड, एक चीज और ध्यान रखना, that these poets did not recognize themselves as romantic। मैं तो पहले भी कहा सी कि अगर बायरन को पता चल जाए कि वो वर्ड्सवर्थ के साथ सेम स्कूल ऑफ पोइट्री जस्ट एज को यूज ऑल तो पता सेम है कहने, लेकिन वो रोमांटिक एज इकट्ठे लिखते पहने, ही वुड नेवर लव इट। वो कदे भी आपदे आप नू वर्ड्सवर्थ के नाल गिनना ही नहीं चाहता। तो यहां से फिर बताया गया कि रोमांटिक जो राइटर सी लाइक कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शेले, कॉलरिज, they never know that they were the romantic poets, although they knew the word romantic। So thank you very much। This was day 3। We are using exactly 50 to 55 minutes। I hope you find yourself enriched with some added information, new information, some new questions, how these are prepared for you। It's all about making you feel that you are on a comfortable hands, you are in safe hands। Will take you through to your journey। ऐਵੇਂ ही चलेगा। अब ये पीपीटी का कलर चेंज कर दिया था, ठीक था ना? तबिंदा कोई बात नहीं, 2-3 क्वेश्चन, इट्स मींस यू हैव लर्नड 2 or 3 न्यू। थैंक यू निशा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच वरिंदर, थैंक्स रूही, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सोनिया हुण आसान लग रहा है ना? वेरी गुड। सोनिया कहती जो पहली बार लाया था मुश्किल लगता सी, हुण लगता बड़ा आसान है। जैसे जैसे करते आगो ना, आपको लेक्चर का क्या, मैं तो तुहानू यूजीसी दे पेपर भी क्लियर करा देना। पढ़ना और उसको समझना, जब चीजों को समझा जाता है ना, एंड वंस यू डिवोट योरसेल्फ, थिंग्स बिकम इजी। लेक्चर कैडर की क्लास जी 30 अक्टूबर से होगी जी। आई एम रिमाइंडिंग यू, 10 दिन आपके पास हैं। आप सबने अपना जो नए बच्चे हैं रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। 30 अक्टूबर मंडे इंडियन राइटर आर के नारायण से आपकी क्लास शुरू होगी, जो ग्रुप में होंगे। अब ये रजिस्टर लिंक पे लगेगी। शेड्यूल जो है वो शेड्यूल आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, पीपीटी में शेयर कर दूंगा जी, पिछले 3 दिन की कर दूंगा शेयर आपको। बिल्कुल सोनम, सही बात है, जिस चीज को इंटरेस्ट से पढ़ लिया मुश्किल हो ही नहीं सकता। वेल डन शिवानी, शाबाश। शिवानी मेहरा के सारे आंसर ठीक थे, क्लैप फॉर शिवानी। हाँ जी रूही, पक्का आज आप वहां पर कर सकते हो। ध्रुव, we have 3 demo classes। You can watch all 3 demo classes live on YouTube link। It is available। If you find you want some information, you can have number written as well on those previous 2 lectures that we have। तो अगर और भी कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो you can call। एंड फाजिलका में ड्रीम्स इंस्टीट्यूट का नंबर ढूंढना मुश्किल नहीं है। थैंक यू शिवानी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आपको 28 तक 29 तक जब मर्जी रजिस्ट्रेशन करवा लो। थैंक यू पल्लवी, थैंक यू वेरी मच। आई एम लुकिंग टू सी यू बैक वंस अगेन, एंड यू बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ आवर्स। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ उस ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਐਂਡ ਯੂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਦੋਸ ਪਲੇਸਿਸ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। बिल्कुल जी, जिन्होंने पूजा, आप इसको दोबारा लगा सकते हो, इस लिंक को जब मर्जी ओपन करो, इट वुड बी अवेलेबल फॉर यू फॉर एवर। जब जब आप इसको खोलना चाहोगे आपको 3 सेशन क्लासेस के मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जल्दी आप फिर मिलेंगे, इकट्ठे होने वाले हैं। मास्टर कैडर वाले तैयार रहो, मंडे तो अपनी क्लासेस शुरू। और एक और इंफॉर्मेशन, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। कोई इंफॉर्मेशन लेनी है फोन कर लिया जे। क्विज हो रहा है जिसमें आप सारे ही इनवाइटेड हो। एक बड़ा शानदार क्विज होगा जिसमें हम 150 से 200 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तुसी जेड़ा भी आना चाहे आ सकता है। एक पहला एक्सपीरियंस है हमारा भी, एक पहली बारी लाइव क्विज होएगा जिन्हों देख के 150 to 200 क्वेश्चन रिवाइज करोगे। मेन फोकस रिवीजन है और कर जाएंगे हम शानदार। बिल्कुल सुरभि, आई एम वेटिंग, वी आर एक्साइटेड एंड एवरीवन इज एक्साइटेड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शब्बा खैर।